بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج الحمدللہ رضوی ہاؤس کراچی میں یہ پریس کانفرنس جاری ہے اس حوالے سے کہ عوامی اہل سنت کی وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے تحریک پاکستان سنی تحریک کے ساتھ کراچی سطح پر متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت متحد ہو کر الیکشن لڑنے کا ہے۔ یہ 2024 میں انشاءاللہ العزیز پاکستان سنی تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم پر کرینک کے نشان پر الحمدللہ کراچی سے یہ الیکشن لڑیں گے، جس میں 91 حلقہ 91 اور حلقہ 103 اور NA 237 شامل ہے، جہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے کرینک کے نشان پر۔ ہم ان کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم تمام تنظیمات اہل سنت، عوامی اہل سنت، علماء، مشائخ، پیران عظام، تاجر، وکلاء، ڈاکٹر اور مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد، تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد پاکستانیوں سے ہم یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف، اس کے خاتمے کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں، کرین کے نشان پر مہر لگائیں، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آپ دیکھیں گے مزید کس انداز میں اور کس طریقے سے پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ کس طریقے سے آئیں گے۔ آج یہ پہلا قدم ہے جو کہ پاکستان سنی تحریک کے ساتھ مل کر ہم الیکشن لڑیں گے، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور تمام ہم عوامی اہل سنت سے، مسلمانوں سے یہی اپیل کریں گے کہ یہ ایک ایسا نشان ہے جو بالکل صاف ستھرا نشان ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی دغا بازی نہیں ہے، کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نشان ہے جو کہ تمام نشانوں سے ایک عظیم نشان کرین کا، تحریک لبیک پاکستان کا یہ نشان ہے کہ یہی انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کریں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ ہم وہ ملک بنائیں گے جو بھیک نہیں مانگے، بلکہ وہ انشاءاللہ دوسرے ممالک کی بھی مدد کرے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پہ آئے گا، اور دین جب تخت پہ آئے گا یہ ہر مسلمان کا یہ یقین جانیے گا دعویٰ ہے کہ تمام دعوے ایک طرف، تمام منشور ایک طرف، تمام مقاصد ایک طرف، تمام ترتیبیں ایک طرف، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام وہ ایک طرف، وہ پوری دنیا کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، ملک کو صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے الحمدللہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کافی وافی ہے، اور یہ وہ تحریک ہے جو لسانیت سے بالا تر تحریک ہے۔ یہاں سندھی بھی موجود ہے، یہاں بلوچی بھی موجود ہے، یہاں پنجابی بھی موجود ہے، یہاں ماجر بھی موجود ہے، یہاں پاکستانی ہر فرد موجود ہے۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں ہر کوئی آسانی سے شمولیت بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہر سطح پر اپنی تحریک لبیک پاکستان کی نمائندگی کو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ کشمیری بھی ہے، سراکی بھی ہے، تمام قوموں کی یہ ایک نمائندہ جماعت ہے، اور اس نمائندہ جماعت نے آج پاکستان سنی تحریک کے ساتھ علامہ بلال عباس قادری جو کہ نائب صدر ہے سنی تحریک کے، اور آپ کی پوری ٹیم یہاں پر آئی، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا بلال عباس صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہیں۔
लाउड बोलें सर। जैसा कि हम कब यार हमें सामने हो गया क्या हो गया लाइव कट हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कासिम खान साहब ने कहा कि इत्तेहाद पाकिस्तान सुन्नी लीग और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो कि हुआ है कराची सतह पर, पाकिस्तान सुन्नी लीग फेडरेशन की अलामत है जिसका पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर तक हर सूबे में हर शहर में उसका नेटवर्क है, उसका काम है। उसमें अहले सुन्नत के भाई अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन्होंने एक ये इत्तेहाद अहले सुन्नत की जो कोशिश की है इसको पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने सराहा है और उनकी इस दावत पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने खैर मकदम किया है। हमें मेरी तमाम अहले सुन्नत की जितनी जमातें हैं, जितने उलमा कराम हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इस वक्त अहले सुन्नत का जो मकाम है, जो मकसद है, वो इत्तेहाद अहले सुन्नत के साथ ही पूरा हो सकता है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि दीन तख्त पे लाना है, तो इंशाल्लाह उसमें जब इत्तेहाद अहले सुन्नत होगा तो इंशाल्लाह ये मकसद जो है वो भी इंशाल्लाह पूरा होगा। सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी भाई ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी हिदायत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इसमें हम मजबूत तरीके से इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से काम करेंगे और इंशाल्लाह 2024 के इलेक्शन है उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फज़ल व करम से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये बताइए लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब नबियन। ये बताइए कि आपका आप जो है पीएलपी के किरण पर इलेक्शन पार्टी इसमें कोई सरवत एजाज कादरी जो पार्टी दूसरी है उनके पास इंतखाबी निशानी इसलिए आप यहाँ लड़ रहे हैं या क्या टेक्निकल वजह? क्योंकि जब आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है या तो उनके पास है निशान, उस पर नहीं लड़ सकते। इस पर क्या तक बात दुरुस्त है कि आप इसके टीएलपी का उस पर इलेक्शन लड़ेंगे किरण पर? सबसे पहले तो ये मैं बताना चलूँ कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और हमारे यहाँ जो एक एहतसाब का अमल हुआ था उसमें सरवत एजाज कादरी साहब को ओहदे से हटाया गया, तो उसमें इलेक्शन कमीशन में हमारा केस चल रहा है जिसमें अभी जो हमारा सेंबर था डेविड लैम्ब वो किसी को भी अलर्ट नहीं है। दूसरा ये कि अभी हमारे जो सरबरा और नायब सरबरा है उन्होंने कहा कि हम अहले सुन्नत के अजीम तर मफाद में इत्तेहाद किया है, तो अगर निशान हमारा होता भी तब भी इत्तेहाद होता, तब भी हम एक दूसरे के आमने और सामने खड़े नहीं होते। तो ये पोजीशन कल भी होती क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, हमारे कायदीन की ख्वाहिश है कि अहले सुन्नत इत्तेहाद के साथ भरपूर तरीके से आप टेबल लैम्प पे लड़ेंगे अपना किरण के इलेक्शन जी। इसमें मैंने अभी जैसे बताया कि सिंबल हमारा नहीं है तो हम किरण के निशान पर ही इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आप इनका हिस्सा बन गए ना? हिस्सा नहीं बन गए, हमने इत्तेहाद किया है। ठीक है, जब आपका निशान आप इलेक्शन में आपको रजिस्टर नहीं तो आप इनके पर लड़ रहे तो इनकी पार्टी के उम्मीदवार कहलाएंगे ना। आइन और कानून के तहत जब अगर जीत अल्लाह आपको कामयाब करे तो आप टीएलपी के कहलाएंगे। आप अलग से सुन्नी तहरीक के साथ असेंबली में तो नहीं बैठ सकते ना, रूल पड़े इलेक्शन कमीशन का। पहले आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपको फिर बार आप जम हो गए इसमें जब इलेक्शन लड़ने आपके नुमाइंदे। ये देखें जम नहीं हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मजहबी सियासी जमात है और वो रहेगी। हमने अभी एक इत्तेहाद किया है, अब उस इत्तेहाद में इनके साथ जो इत्तेहाद हुआ है उसमें हमारे को जो सीटें दी गई हैं तो हम चाह रहे हैं कि उस निशान पर पहले बहुत ज़्यादा वोट पड़ चुका है क्योंकि जहां हम खड़े हुए हैं वहाँ सेकंड पोजीशन पर ये जमात थी, टीएलपी सेकंड पोजीशन पर उस जमात पे थी। तो उस निशान पे जब वोट ज़्यादा लाट हुए तो हमारी भी मतलब ये हुई कि उसी निशान के साथ हम आगे की तरफ
फरीद भाई, जब आप जीत मैं इसको- जाएंगे मैं तो इसको clear अच्छा कर फरीद दूं। भाई, एक मैं मिनट, clear आप कर जीत जाएंगे तो आपके जो नुमाइंदे वो टीएलपी के नुमाइंदे असेंबली में कहलाएंगे ना, वो- सुन्नी तहरीक के वो तो नहीं आप- कहलाएंगे ना। आप- टेक्निकल बात तो समझिए आपकी पहले। बात सही है, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। बात अब इनमें सब हो गए ना, आप ये बोले बस। टीएलपी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक नहीं, एहले सुन्नत हो गई, तो एहले सुन्नत के नाम पर नहीं, वो तो टीएलपी पर लड़ेगा, वो तो अपने वो सही है ना, चंबल वो पर निशान लड़ रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है कि जब क्रेन के निशान पे आएंगे तो तो फिर वो से देखें ना। क्रेन का ही होगा, मगर इनकी तंजीम वो तंजीम अपनी है, हमारी तंजीम हमारी अपनी तंजीम है, और ये क्रेन के निशान पे लड़ेंगे। जब क्रेन आपके के निशान नुमाइंदे पर कहलाएंगे लड़ेंगे ना। तो यकीनन वो क्रेन की ही पॉलिसियों के साथ फिर रहेंगे। मेरा तो यही है अच्छा ना। कासिम फकरी साहब, ये तो सुन्नी तहरीक थी जो कि आपके पास आ गई खुद और आकर जो है मिलकर काम कर लिया, तो अहले सुन्नत की और भी जमातें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी है, बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी मौजूद हैं, तो क्या ऐसी कोशिश नहीं हो सकती कि तमाम अहले सुन्नत की जमातों को मिला लिया जाए, एक पार्टी बना लिया जाए, एक निशान किया जाए? क्या इस तरीके से ज़्यादा बेहतर नहीं? बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया। बात ये है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तंजीमात के पास हम गए हैं। मैं बजाते खुद भी गया हूँ कराची सतह पर, तकरीबन तंजीमात के पास, तकरीबन शख्सियात के पास, उलमा के पास, ताजिरों के पास हमने ये दरवाज़ा खुला रखा है कि कोई भी आए वो क्रेन के निशान पर आए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी बहुत बड़ी जमात है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी यही फरमाया है कि जो भी आना चाहे हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने इसी बात को, हम इनके पास गए हैं और इसी बात को उन्होंने कबूल किया और कबूल करते हुए क्रेन के निशान पर आ गए। हमारे तमाम दरवाजे खुले हुए हैं, तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के लिए, किसी के लिए भी दरवाजे खुले हैं, हमारे मंसूब पे आए। अच्छा, जिस तरह नूरानी मियाँ ने एक वक्त में किया था, अपना उनका निशान एक और था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किताब का इंतखाब किया था, तमाम रिलीजियस पार्टीज़ को मिला लिया था, तो क्या इस तरीके से नहीं हो सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी जमातें हैं वो भी अपनी निशान के साथ आई हुई हैं। क्या अगर तमाम अहले सुन्नत की जमातें मिलती हैं तो कोई एक निशान तब्दील हो सकता है बाद में? नहीं, फिलहाल इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, बिलावल साहब का कहना है कि एक बार फिर लाडले की सूरत में किसी और सियासी जमात को मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। उनका निशाना भले नून लीग हो या दीगर सियासी जमातें हों, तो आपको ऐसा खदशा लगता है कि कोई ऐसी क़ुव्वतें इस वक्त भी मौजूद हैं जो किसी लाडले को मुल्क पर लाना चाह रही है? देखें, हमारे नज़दीक ये सारे लाडले हैं। कभी ये लाडला बनता है, कभी दूसरा, कभी बिलावल लाडला, कभी सरदारी लाडला, कभी इमरान लाडला, कभी नवाज लाडला। लाडले तो सारे हैं। जो मामलात है वो तो यही है कि हमने इंशाल्लाह लाडलों को बताना है कि लाडले बनने से पाकिस्तान का काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान का हमदर्द, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी रखने वाला और पाकिस्तान को चाहने वाला, पाकिस्तान के दर्द को समझने वाला, और इस महंगाई की हालात है और इस तरह की परेशानी से निकालने वाला ही वो पाकिस्तानियों का लाडला होगा, किसी का लाडला नहीं होगा। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, भैया ना भाई हो गया। ठीक।